पीसीओडी की कोई दवाई नहीं होती। इफ somebody sells you a product कि आप ये पाउडर खाइए या आप ये खाइए ना आपकी पीसीओएस बिल्कुल गायब हो जाएगी, they are fooling you. I repeat again, they are fooling you. पीसीओडी, थायराइड इश्यूज और इंसुलिन रेजिस्टेंस, ये ऐसा ट्रायंगल है जो एक साथ ही दिखता है. हाउ डू यू एक्सप्लेन इट? I had my first period when I was 12. In fact, मैंने अपनी प्रैक्टिस में 8-8 साल की लड़कियों को भी पीरियड होते देखा है. What is the right age to plan a baby for a woman? जब आप रेडी हैं फिजिकली, मेंटली, इमोशनली एंड फाइनेंशियली, प्रेगनेंसी शुड ऑलवेज बी बाय चॉइस, नेवर बाय चांस. Unfortunately, these days the incidence of C-section is rising very, very high. Eating papaya can terminate pregnancy. Unprotected sex during periods can lead to pregnancy. Men have to understand that women actually undergo a lot. हेलो वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ MHB बाइट्स. आज हम बात करने वाले हैं अबाउट समथिंग दैट हाफ ऑफ द वर्ल्ड एक्सपीरियंसेस बट वेरी फ्यू एक्चुअली अंडरस्टैंड: women's health. From periods to pregnancy, PCOD to postpartum, and finally menopause, we are diving into every phase of a woman's journey. और इस incredible journey को समझाने और हमें educate करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर अंजलि कुमार, a senior gynecologist with 34 years of experience, an advanced endoscopic and robotic surgeon, and founder of Maitri, a digital platform dedicated to women's health. She's one of the most trusted voices in this space, and we are so excited to have her here today. Welcome to the show, Dr. Anjali. Thank you, Ashish, and thank you, my health buddy. It's indeed my privilege to be on your show. इतने पॉपुलर हो आप, इतने एक्टिव हो सोशल मीडिया पे, बिजी आपकी प्रैक्टिस है, बट फॉर द पीपल हु डोंट नो यू, बहुत कम लोग होंगे वो, उनके लिए प्लीज टेल अस हाउ यू आर प्लेस्ड इन लाइफ एंड career at this phase. So, I am a gynecologist, I'm a surgeon, I'm an obstetrician, and I have close to 34 years of experience in this field. I'm the director of gynecology at CK Birla Hospital, Gurgaon. मेरा अपना भी क्लिनिक है, मैं गुड़गांव में प्रैक्टिस करती हूँ. I'm also an ex-army officer. I am an advanced laparoscopic and robotic surgeon. But इन सबसे ज़्यादा मुझे हमेशा से लगता था कि women need to be made aware about their bodies and health in a right manner. ये आशीष आपको भी पता है कि आजकल इंटरनेट के ज़माने पे इतनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन इंटरनेट पे अवेलेबल है, बट अनफॉर्चुनेटली वो सारी इंफॉर्मेशन बहुत ही फ्रिवलस एंड मेडिकली इनकरेक्ट है. कोई भी कुछ भी लोगों को बोल देता है कि आप ये कर लीजिए तो आप इससे ठीक हो जाएंगे, ये कर लीजिए तो आपकी हेल्थ ऐसे हो जाएगी. बट somebody needs to talk facts. Somebody has to tell people the facts. So that's how 5 years back I thought of creating a space जहाँ पे हम women's health को बहुत ही सिंपल भाषा में लोगों को समझाएं, और वो जो इन्फॉर्मेशन होगी वो मेडिकली करेक्ट होगी, एविडेंस बैक होगी. So I think we succeeded. We started with few channels, few videos on YouTube, and they actually went viral. And आज की डेट में close to 1 million people follow us globally for the evidence-backed medically correct information. So much so, WHO ने भी हमें recognize किया है क्या कि जो मैत्री बोल रही है, that's the information, that's the voice you can trust. So we are part of the FIDES network of WHO. So these are the bona fide partners of WHO when it comes to disseminating, correct information to people. सो मैत्री हमारा प्लेटफॉर्म है, उसमें यूट्यूब चैनल है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम पे, जहाँ पे हम मेडिकली करेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट वुमेन्स हेल्थ देते हैं. रिसेंटली हमने अपना एक AI हेल्थ वर्टिकल भी लॉन्च किया है जिसका नाम है आयशा. सो आयशा स्टैंड्स फॉर AISHA. सो AI obviously stands for AI. आजकल सबको पता है AI. And Isha is a goddess which talks about knowledge. So हम लोग अभी इंडिया का फर्स्ट वुमेन्स हेल्थ चैटबॉट आयशा लॉन्च कर रहे हैं. एंड उसमें आगे भी बहुत सारी चीज़ें होंगी जो कि वुमेन्स हेल्थ को उसके खुद के हाथ में देंगी. शी विल बी एबल टू कंट्रोल हर fertility, her choices, her health, so many things. So
ड्रीम्स बहुत हैं, लेट अस सी इफ वी आर एबल टू डू ऑल ऑफ देम। सुपर इम्प्रेसिव, सुपर। मैत्री एंड आयशा, हम्म। ब्यूटीफुल नेम्स। और मैत्री का मतलब क्या है वैसे? हाँ, ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है कि हमने नाम मैत्री कैसे सोचा। सो आई स्टिल रिमेंबर इट वाज एंड ऑफ जुलाई 2019। हम रात के 10 बजे बैठे थे एंड हमने सोचा कि ऐसा कुछ बनाना चाहिए एंड आई वांटेड कि हम उसका इंडियन नाम रखें। तो बहुत आपस में मेरे बच्चे थे, हम लोगों ने डिस्कस करके ये नाम निकाला कि मैत्री आपका फ्रेंड है, इट्स अ फ्रेंड विच यू कैन रिलाई। एंड अगर आपने मैत्री का लोगो देखा है तो उसके ऊपर एक रेड डॉट है। बिंदी है। So that bindi signifies women's health power and it denotes the Indian context हम्म, to that name. एंड हमने उसी समय 10 मिनट में प्रिसाइजली वो लोगो बनाया था। उस समय उसका डोमेन नेम बुक किया एंड यस मैत्री वाज बॉर्न। वाओ, ओके। सो माय हेल्थ बडी का मतलब मैत्री का इंग्लिश वर्जन शायद माय हेल्थ बडी हो सकता है। बिल्कुल, आई वाज जस्ट थिंकिंग कि मैत्री एक्चुअली मीन्स बडी, योर फ्रेंड। सो इट्स आई एम हैप्पी दैट वी शेयर द सेम कॉमन मीनिंग, ऑसम, या, एंड सेम कॉमन पर्पस एज वेल। सेम कॉमन फ्रूट्स। जैसा आपने बताया, मेडिकली करेक्ट एंड एविडेंस बेस्ड इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंचाना, बिल्कुल। और यही काम है एमएचवी बाइट्स का भी, जो पॉडकास्ट आज हम कर रहे हैं। सो डॉक्टर, आई हैव मेनी क्वेश्चंस फॉर यू। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। आई होप वी आर एबल टू कवर मोस्ट ऑफ देम, बट चलो शुरू करते हैं। आई पहला, विल डू माय बेस्ट। हाँ जी, आई एम श्योर। सो पहला क्वेश्चन है, बेसिक से शुरू करते हैं। हम्म। मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। um, मैं अपनी टीम से पूछ रहा था, 20% हमारी क्लाइंट्स, विमेन क्लाइंट्स को ही पता है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होती है डिटेल में, और मेन हार्डली नो अबाउट मेंस्ट्रुअल साइकिल। सो आई थिंक लेट्स बिगिन विद व्हाट इट इज़, क्या फेजेस होते हैं, थोड़ा प्लीज़ इसमें एजुकेट कीजिए हमें। हम्म। सो इट इज सो अनफॉर्चुनेट कि आज के ज़माने में मेट्रो सिटी जैसे गुड़गांव, दिल्ली, नोएडा, एनसीआर, वहाँ पे भी आप बोल रहे हैं ओनली 20% वुमेन रियली नो कि पीरियड्स क्या होते हैं। तो सबसे पहली बात तो पीरियड इज समथिंग विच वी शुड बी प्राउड ऑफ। मैं सबको बोलती हूँ इट इज़ नॉट समथिंग विच वी शुड बी अशेम्ड ऑफ, इट इज़ समथिंग टू बी प्राउड ऑफ। It actually talks about your ability to give life, to give birth. इतना important चीज़ है, it is not dirty at all. So periods क्यों होते हैं? बिकॉज हर महीने हमारी बॉडी हमारे यूट्रस को प्रेगनेंसी के लिए तैयार करती है बिकॉज ऑफ सो मेनी हार्मोनल चेंजेस। ओके, लेकिन जब वो प्रेगनेंसी नहीं होती तो वो पूरी प्रिपरेशन वेस्ट हो जाती है एंड द बॉडी एक्सपेल्स इट ओके, in form of bleeding. So it's simply the lining of the uterus develops in response to the hormones, and when the pregnancy does not happen, it sheds off. That's simply periods. सो जो 28 डेज की जो साइकिल होती है, उसके क्या-क्या फेजेज़ हैं? व्हेन व्हेन डू वी स्टार्ट, लाइक पीरियड से फिर क्या-क्या होता है? थोड़ा-सा वो डिटेल में हो तो शायद लोगों को समझ में आएगा कि फर्टिलिटी डेज़ कौन से हैं, या फिर कौन से पीरियड्स के, पीएमएस क्या है? So पहली बात तो ये है कि there is nothing called a perfect 28-day cycle. ये एक ओह, बहुत बड़ा मिथ है ओके, कि perfect 28 days इट्स नॉट 28 डेज़। It is not 28 days. Very, very few women have 28 days cycle. It could be 30 days, it could be 35 days, it could be 45 days also. That's also normal. It could be 25 days also. 22 45 days. डेज़ भी नॉर्मल है। 45 days be normal. So let's just talk about ओके, that. Okay? अगर शुरुआत से ही आपका पीरियड 40 डेज का है लेकिन अब आके वो 28 डेज का हो गया तो वो एबनॉर्मल है। अगर आपका पीरियड पहले 28 डेज का था अब वो जाके 45 डेज का हो गया तो वो एबनॉर्मल है। डिपेंडिंग अपॉन योर लेंथ ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल ओवुलेशन डिसाइड होती है। सो ओवुलेशन एक ऐसी इवेंट है जिसके अंदर हर महीने एक राइप अंडा आपकी ओवरी से निकलता है। ओवुलेशन हमेशा पीरियड से 14 डेज प्रायर होती है। हुँ, सो इट्स अ रेट्रोस्पेक्टिव इवेंट which happens exactly 14 days before the periods, which means अगर आपका साइकिल 40 डेज का है तो आपकी ओवुलेशन 26 26th डे पे होंगे। अगर आपका साइकिल 28 डेज का है तो आपकी ओवुलेशन 14 डेज पे होगा। अगर आपका साइकिल 35 डेज का है
तो आपकी ओवुलेशन डे 21 पे होगी। सो इसका मतलब पीपल हु आर ट्राइंग टू गेट प्रेग्नेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी साइकिल लेंथ को समझिए। साइकिल लेंथ हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? डे 1 ऑफ लास्ट पीरियड टू डे 1 ऑफ नेक्स्ट पीरियड, दैट इज साइकिल लेंथ। सो आप अपने 5-6 साइकिल को पहले मेजर करिए सो दैट आपके पास एक एवरेज साइकिल लेंथ आ जाएगी कि मेरा पीरियड 28 डेज चलता है या 35 डेज चलता है या 40 डेज चलता है। नाउ यू नो कि अगर मेरा पीरियड 30 डेज पे आता है तो दैट मीन्स मेरी ओवुलेशन 16th डे पे होती है एंड यू कैन प्लान योर प्रेगनेंसी अकॉर्डिंगली। प्रॉब्लम तब होती है जब लोगों का पीरियड एब्सोल्युटली हेवायर हो जाता है, एब्सोल्युटली इरेगुलर हो जाता है। आजकल बहुत सारे कारण हैं जिसकी वजह से लोगों के पीरियड्स इरेगुलर डिस्कस हो करते रहे हैं, हैं। हाँ जी। तो फिर ये जो कैलकुलेशन है थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है, बट ब्रॉडली ये हमेशा याद रखना है कि ओवुलेशन 14 डेज बिफोर पीरियड्स होती है। और वो हाउ मच डज इट लास्ट द ओवुलेशन फेज? Ovulation is an event which is like just like that. The egg is released. After that, the life of that egg is just about 48 hours. ओके। यानी कि अगर उस 48 hours में वो अंडा फर्टिलाइज हो गया तो हो गया, उसके बाद वो डेड हो जाता है। So ovulation is an instant event. It just releases. Okay. It's not that it lasts for 2 days. So out of many eggs which are trying to mature or develop, only one egg is released during the ovulation period Correct. and it stays there for around 24 to 48 hours. Hmm. If it gets a sperm there, it gets fertilized Hmm. and it heads towards pregnancy. Correct. अगर उसको sperm नहीं मिला, it's not fertilized, Hmm. it would start shedding it. It would start prepare to shed it. Periods में वो उसको shed करता है and it starts to prepare for next pregnancy. So egg नहीं शेड करता है। अच्छा, जब एग फर्टिलाइज नहीं होता है तो हम्म। वो डेड हो जाता है। okay. जब वो डेड हो जाता है तो हमारी यूट्रस की जो लाइनिंग है एंडोमेट्रियम, उसको सिग्नल मिलता है कि अब प्रेगनेंसी नहीं हुई तो अब मेरी प्रिपरेशन बेकार है। हम्म। सारे हमारे हार्मोन्स लेवल्स ड्रॉप हो जाते हैं और वो लाइनिंग डेड हो जाती है एंड दैट लाइनिंग शेड्स इन फॉर्म ऑफ पीरियड्स। Okay. So it's a very beautifully orchestrated, hormone controlled event which actually starts from the brain. मैं कुछ 7-8 साल पहले जब ये पढ़ना शुरू किया and I was so fascinated by this fact कि out of all the eggs only one gets matured. मतलब ये नेचर ने, ये भगवान ने, जो भी है, जिसने भी ये बनाया, कितनी फैसिनेटिंग चीज बनाई है कि बिल्कुल ओनली वन एग। gets mature. ऐसा नहीं है, कभी कभी 2 eggs भी एक साथ mature होकर रिलीज हो जाते हैं. That is how twins happens. These are fraternal twins. 2 different eggs fertilized by 2 different eggs. Identical twins भी होते हैं, वो थोड़ा सा डिफरेंट डिस्कशन हो जाएगी. काफी एक टेक्निकल हो गया वो। नहीं, एक एग फर्टिलाइज जब होता है तो वो जब डिवाइड होता है तो दोनों हाफ्स जो होते हैं बिकॉज ऑफ सम अननोन रीजन वो अपने अपने रास्ते चल देते हैं और अपने आप डेवलप होते हैं. दैट्स हाउ वी गेट But आइडेंटिकल. those are edge cases. So for 99% of the people, it's just one egg. Exactly. It is one single egg which matures. In fact, इसको डोमिनेंट फॉलिकल बोलते हैं. साइकिल के शुरू में कम से कम 5, 6, 7 एग्स एक साथ डेवलप होते हैं. उसमें से नेचर अपने आप डिसाइड करती है ये एक एग है जो काम करेगा, अब इसको आगे डेवलप कराना है. वाह, सुपर इंटरेस्टिंग। यस. और एक और चीज, एक और टर्म है बल्कि जो आजकल काफी है, आई एम पीएमएसिंग। सो ये पीएमएस क्या है? पीरियड्स तो आपने बताया, बट पीएमएस भी एक चीज है। व्हाट इज इट? So PMS actually stands for premenstrual syndrome. Now, premenstrual syndrome is basically a combination of mood disorders, emotional disorders, behavioral disorders, and physical disorders which can काफी affect डिसऑर्डर्स women. बोल दिए आपने। नहीं, मैं अभी थोड़ा समझा रही हूँ. मैंने बोला जैसे हम जो डॉक्टर्स हैं ना मेडिकल भाषा बोलते हैं. जी, So please pardon me for that. I'll explain. ओके। तो ये जो चेंजेस हैं दे हैपन टिपिकली बिफोर द पीरियड्स एंड सरप्राइजिंगली जैसे ही पीरियड खत्म होते हैं 7 दिन के अंदर वो अपने आप ही ठीक हो जाता है. इनफैक्ट दैट इज हाउ वी डायग्नोज इट कि कुछ ऐसे सिम्टम जो पीरियड आने से 10-15 दिन पहले शुरू होते हैं और पीरियड खत्म होते ही अपने आप ठीक हो जाते हैं. तो अगर कोई ऐसा सिम्टम है जो कि इस तरीके के टाइमलाइन को फॉलो कर रहा है, वी टिपिकली असाइन इट एज अ प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम
अनलेस एंड अनटिल कि हमने बाकी सारी चीज़ें रूल आउट कर दी हैं, थायराइड चेक कर लिया और भी बहुत सारी चीज़ें चेक कर ली। तो टिपिकली ऐसा कहते हैं कि जो पीएमएस है, उसके डिफरेंट डिफरेंट ग्रेड्स होते हैं, माइल्ड, मॉडरेट, सिवियर। लगभग 70% वुमेन ऐसा देखा गया है, दे सफ़र फ्रॉम सम काइंड ऑफ पीएमएस। 70%। 70 ओके। कुछ लोग नहीं बताते हैं, कुछ लोगों को सिंपली एक ब्लोटिंग लगती है, टायर्डनेस लगती है, स्लीपीनेस लगती है, इरिटेबिलिटी लगती है, क्रेविंग। क्रेविंग लगती है, स्लीप डिसऑर्डर्स लगते हैं। फॉर सम पीपल जब चीज़ें थोड़ी-सी ज़्यादा हो जाती हैं, दे बिकम वेरी एंग्री, दे बिकम स्लीपलेस। बट इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी वुमन अगर थोड़ी-सी एंग्री लग रही है या इरिटेटेड लग रही है, आप उसको बोलें कि आप तो पीएमएसिंग है, तो दैट्स नॉट राइट। Uh, Unfortunately, with due respect, men have to understand that women actually undergo a lot in terms of hormonal changes. Absolutely. Just because some women's body is reacting to those hormonal changes in a particular way, it does not mean कि वो overact कर रही है और over dramatize कर रही है. So PMS जो है ये एक real चीज़ है, एक real problem is actually not a right word for it. It's a real condition. जी। And this needs to be treated by a doctor. So सबसे पहले मैं सबको यही बोलती हूँ कि आप डॉक्टर के पास आइए अगर आपको इस तरह की कोई प्रॉब्लम है. लेट द डॉक्टर एग्जामिन यू एंड अकॉर्डिंगली आपकी सिचुएशन कैसी है, they can prescribe you lot of things. ओके। सो एक और चीज़ जो वी बीन रीडिंग अ लॉट दैट एंड आई विल आस्क दिस क्वेश्चन टू यू, व्हाट इज़ द राइट age for girls to hit puberty or to start having periods? Hmm. So there is nothing called a right age to hit puberty. Commonly हम लोग जो देखते थे कि anything between 11 to 15 years was earlier supposed to be normal. But these days we are seeing lot of young girls going into early puberty. In fact, मैंने अपनी प्रैक्टिस में 8-8 साल की लड़कियों को भी पीरियड होते देखा है. Now this is very unfortunate. Unfortunate इसलिए because medically also जब किसी को पीरियड होते हैं, the starting of the periods actually signals the early closure of epiphysis. Now epiphysis क्या होता है? हमारी long bones के ends जो होते हैं उसको medically epiphysis बोलते हैं. तो जब periods आ जाते हैं तो उससे वो जो ends हैं उसके closure होने का खतरा होता है, which means a girl can have a stunted height. So medically ये problem है. Also अगर किसी लड़की को जल्दी periods होते हैं तो I really feel at that age, a girl is not able to understand the implications of having a period. So it becomes a very difficult situation for the parents also to educate the young girl and to explain her that how should she be now looking after herself. So having an early period is not a great thing, and unfortunately in modern society, this is happening a lot. So compared to 25 years back, the average periods are like 2 years earlier now. सो इनफैक्ट मैं अपने भी प्लेटफॉर्म पे एक बार ये बात बता रही थी कि मेरी जो नानी थी, अच्छा। शी हैड हर फर्स्ट पीरियड व्हेन शी वाज 17. Oh. माय मॉम हैड हर फर्स्ट पीरियड व्हेन शी वाज 16. आई हैड माय फर्स्ट पीरियड व्हेन आई वाज 12 एंड माय डॉटर हैड हर फर्स्ट पीरियड व्हेन शी वाज 11. नाउ हम सारे एक ही जेनेटिक पूल से आते हैं. जी। But see, there is a visible change in the age of menarche. And like I said, आज की डेट पे एंड मेरी भी डॉटर अब नाउ शी इज 30 प्लस. तो आज की एज में जो हम देख रहे हैं वो हम 8-9 साल के बच्चों को देख रहे हैं कि वो पीरियड हो रहा है. So What is the reason behind this? somehow as a society we have changed. So number one is the diet. We are exposed to a very, very bad diet. Processed food, packaged food, refined food, junk food. In earlier times, हमारे टाइम में ये सब चीज़ें available नहीं होती थी. Then secondly is a sedentary lifestyle. People have forgotten to play. People have forgotten to go outside and move their body. प्ले तो कर रहे हैं ना वीडियो गेम। हाँ वही बात है ना. People have now changed their playstations from playground to the digital playstations. That is the problem. So actually there is no movement in the body.
आई मीन इन ओल्डन टाइम्स हमारे टाइम भी हमारे टाइम कोई भी डिजिटल गैजेट्स नहीं होते थे. वी यूज्ड टू गो आउट प्ले इन द गार्डन एंड आई रिमेंबर माय मदर हैड टू एक्चुअली पुल मी आउट from the park to come into the house. Today I have seen पुश करना parents have to push their children out to go outside and play outside. So such is the problem. जी. And probably when we talk further, we will talk about the importance of movement, how movement Mm. actually controls so many hormonal responses in our body. So, lack of movement, bad quality diet, and sleep disorders. This is something I have been talking for last 10 years that sleep is a very important issue, and now we have so many articles which have come up in PubMed, Google Scholar, which talk about how lack of good quality sleep affects the hormonal function. जैसे मैंने आपको बताया था हमारे सारे हार्मोन्स हमारे ब्रेन से रिलीज होते हैं. जी. अगर हमारे ब्रेन में गड़बड़ है तो नीचे तक सारी गड़बड़ हो जाएगी. एंड टुडे अनफॉर्चुनेटली बच्चे सोते नहीं हैं. सारी की सारे पेरेंट्स मुझे आके बताते हैं कि मेरा बच्चा 12 बजे सो रहा है, 1 बजे सो रहा है. उसके बाद द सेम चाइल्ड गेट्स अप एट 6 o'clock टू गो टू द स्कूल एंड इज yawning द होल वे इन द स्कूल. Mm. So lack of sleep is one big thing. And then exposure to the digital screens. And of course, stress in every form. Today, young children, I don't know आपको पता है कि नहीं, today young children are exposed to so much of anxiety and depression that an entire specialty of pediatric psychologists Mm. have come up. कि छोटे छोटे बच्चे are struggling with anxiety, depression, mood disorders. Usually because of social media Real- comparison. So in fact, मैं बहुत बार ये सोचती हूँ, internet actually has not been a boon. It has actually been a Mm. sort of a bane. I don't know, but शायद हम लोगों ने अभी तक इंटरनेट को या डिजिटल बोन को एक रिस्पॉन्सिबल तरीके से यूज़ करना सीखा नहीं है. एंड नाउ विद द एआई कमिंग इन हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और ज़्यादा हो जाती है, स्पेशली इन रेजिंग अ जनरेशन विच इज़ येट टू बिकम एडल्ट. रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा. यस. पीरियड से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है. ये केमिस्ट लोग हम्म. सैनिटरी पैड्स को ये ब्लैक पॉलिथीन में क्यों देते हैं? मतलब क्या ये कोई ब्लैक मनी है जो उसमें देते हैं, और व्हाट इज द इशू? हाउ डू यू सी इट एज अ डॉक्टर? दिस इज बिकॉज हम उसको ब्लैक पैड में ही मांगते हैं. जिस दिन हमारे अंदर ये कॉन्फिडेंस आ जाएगा दैट आई कैन होल्ड द सैनिटरी पैड विदाउट एनी वरी ऑफ पीपल लुकिंग एट मी. What is the shame behind it? There is no shame. Yeah. In fact, I always feel the men should feel, they should come forward. They should say, okay, they should tell their daughter, they should tell their wives, okay, let me go and buy a pad for you without any worry, without any shame. When you can ask the chemist for a condom, why can't you ask them for a pack Exactly. of sanitary pads or tampons? So जब हमारे अंदर वो इतनी ज़्यादा strength और courage आ जाएगा to hold a packet of pad, हमारे को केमिस्ट भी देना बंद कर देगा. वो अपना पैड काला अपना पैकेट क्यों वेस्ट करेगा? जी, बिल्कुल. बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है ये. वी शुड Hmm. स्टार्ट एक्सेप्टिंग दीज थिंग्स. Yes. These are very normal, very Hmm. much physiological changes a woman is going through. एंड ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि men should come forward. मैं ये सबको बोलती हूँ, more than our daughters, we should be teaching our sons about this. लड़कियों को तो कैसे न कैसे पता लग ही जाएगा. हमने अपने बेटों को क्या सिखाया? This is our responsibility as a parent. How are we raising our boys? How should they be treating the women in their lives? That is very, very important. ये मैसेज अगर हम इस पॉडकास्ट के थ्रू पहुंचा पाए तो I hope it is a very lot of good. men also watch this podcast and they understand what we are talking about. So doctor, next thing is हमने periods की बात की. So teenage men, they start having periods, but late teens, early 20s, they start to have hormonal issues. PCOD है, specifically PCOD, PCOS, इस तरह के issues. So what is happening there? It is so unfortunate, Ashish, कि today we see 1 in 3 to 5 women suffering from some kind of symptoms of PCOD. जब मैं अपने MBBS में गई थी, so this was in 1982. 1982 I got admission in my MBBS and हमारी बुक्स में PCOD का बस एक छोटा सा चैप्टर होता था.
But today in my OPD, if I see 50 patients a day, उसमें से 10 पेशेंट रोज न्यू पेशेंट्स होते हैं PCOS के, विच इज सो वेरी सैड. एंड जैसे अभी हमने बात की थी, टुडे एज अ सोसाइटी हम लोग बदल गए हैं. We are exposed to bad diet, lot of stress, lack of sleep. So for all of you who are watching, make sure कि आप अच्छे से सोएं. I mean, today we are in a time, I have to tell as a doctor कि भाई आप सिंपल खाना खाइए, थोड़ा हिला डुला कीजिए, टाइम से सोया करिए, टाइम से जागा करिए. वही Just think से of it कि ये कोई डॉक्टर की बोलने की बात है, but I have to write it in my prescription, that you need to take care of your diet and sleep well and exercise more. And more than the exercise, we don't move throughout the day. This is what is the problem. जो कॉमन सेंस है उसको आपको प्रिस्क्राइब करना पड़ रहा है। कॉमन सेंस को मुझे लिखना पड़ रहा है अपनी प्रिस्क्रिप्शन में कि आपको ये करना है. दिस इज द सैडेस्ट रियलिटी ऑफ टुडेज लाइफ. सो जो टर्म है ये पीसीओएस, फिर पीसीओडी भी एक टर्म है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू? कि सब सेम है. सब सेम है? पीसीओ, पीसीओडी, पीसीओएस सब सेम है. ऑफ कोर्स जब ये शुरू हुआ था तो लोगों ने इसको पीसीओ बोलना शुरू किया. पीसी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज मतलब वो थोड़ा ज़्यादा हो गया. सिंड्रोम का मतलब ये है नाउ मल्टीपल मल्टीपल सिस्टम्स इन द बॉडी आर नाउ इन्वॉल्व. कि उस व्यक्ति को उसका ब्लड प्रेशर भी बढ़ रहा है, उसको डायबिटीज़ भी हो रही है, उसके लिपिड्स भी एबनॉर्मल हो रहे हैं, उसका वेट भी बढ़ रहा है. सो जो पॉलीसिस्टिक ओवरी है इज एक्चुअली अ मिसनोमर. पॉलीसिस्टिक ओवरी में बेचारी ओवरी तो एक फाइनल सा कहें कि टिप ऑफ द आइसबर्ग. उसके नीचे बहुत कुछ हो रहा है विच इज एक्चुअली कॉजिंग द फाइनल सिम्टम्स इन द ओवरी. सो द एक्चुअल पैथोलॉजी जो पीसीओ में होती है इज व्हाट इज इंसुलिन रेजिस्टेंस. सो इंसुलिन हमारी बॉडी में एक ऐसा हार्मोन है जो कि हमारी शुगर को रेगुलेट करता है. जी। अगर किसी की बॉडी में इंसुलिन कम हो जाता है तो शुगर बढ़ जाती है. और कभी कभी क्या होता है इंसुलिन रेजिस्टेंस, यानी कि इंसुलिन हमारी बॉडी में बहुत है लेकिन वो इंसुलिन सही ढंग से काम नहीं कर पा रहा है. तो जब इंसुलिन सही ढंग से काम नहीं कर पा रहा तो हमारा पैंक्रियास एज अ रिस्पॉन्स और इंसुलिन बनाता है, तो हमारी बॉडी में इंसुलिन के लेवल्स बढ़ जाते हैं. इसको हम हाइपर इंसुलिनीमिया बोलते हैं, यानी कि ब्लड में इंसुलिन की मात्रा बहुत बढ़ जाती है. एंड समहाउ ये जो हाई इंसुलिन है हमारी ओवरी को स्टिमुलेट करके उसको बड़ा कर देता है, बल्कि कर देता है, विच लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ मल्टीपल सिस्ट एंड एबनॉर्मल हॉर्मोन्स, जिसकी वजह से पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं, एक्ने हो जाता है, बाल आने शुरू हो जाते हैं, लोगों को प्रेगनेंसी होने में डिफिकल्ट हो जाती है, ट्रंकल ओबेसिटी हो जाती So है. these are all symptoms. These are all symptoms of PCOS. And PCOS is a lifestyle disorder. Please ये आप सब समझिए कि PCOD की कोई दवाई नहीं होती. बिल्कुल कोई भी दवाई नहीं होती है. कोई भी पैथी, चाहे वो एलोपैथी हो, चाहे वो यूनानी हो, चाहे आयुर्वेदा हो, चाहे कोई भी. इफ somebody tells you कि आप ये दवाई खाइए और आपकी 3 महीने में आपकी PCOS गायब हो जाएगी, और इफ somebody sells you a product कि आप ये पाउडर खाइए या आप ये खाइए ना आपकी PCOS बिल्कुल गायब हो जाएगी, they are fooling you. I repeat again, they are fooling you. It does not happen like this. PCOS is a lifestyle disorder. It has to be treated with the lifestyle changes. Of course, there are certain conditions. मान लीजिए अगर किसी के चेहरे पे बहुत बाल आ गए हों या किसी को प्रेगनेंसी होने में दिक्कत हो रही है, ऑफ कोर्स देयर आर लॉट ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट्स अवेलेबल. तो पीसीओडी में बाल क्यों आ रहे हैं? ओके, क्योंकि जैसे मैंने बताया आपकी ओवरीज बल्की हो जाती है. सो दे प्रोड्यूस हार्मोन्स विच आर एंड्रोजेनिक. एंड्रोजेनिक क्या होते हैं? दे आर मेल पैटर्न हार्मोन्स. अब मेल्स में क्या होता है कि सिर के बाल कम होते हैं, जी। बाकी बॉडी पे ज़्यादा बाल होते हैं. सो नाउ इन अ वुमन सिर के बाल कम होने शुरू हो जाते हैं और बाकी बॉडी पे बाल ज़्यादा होने शुरू हो जाते हैं. टिपिकली इन अ मेल पैटर्न कि यहाँ पे आपके बाल आ जाएंगे, आपके अपर लिप पे बाल आना शुरू हो जाएंगे, बाकी बॉडी में ज़्यादा बाल हो जाएंगे एंड स्कैल्प हेयर लॉस होना शुरू हो जाएगा. सो मेल पैटर्न हेयर ग्रोथ बॉडी में आना शुरू हो जाती है. सो लाइक आई सेड पीसीओडी तो बेचारी पीसीओडी में तो ओवरी बस इज द फाइनल व्हाट डू आई से इट बियर्स द ब्रंट ओके। of the all wrong things which are Upstream happening in the body. systems. It is just the tip of iceberg. और हमने उसी को कल्पिट बना दिया. तो डॉक्टर एक और रिक्वेस्ट है मेरी आपसे। आपने जैसे सबको बोला अभी कि पीसीओडी की कोई दवाई नहीं है। एक और चीज़ सबको बोल दीजिए, क्योंकि हमारे तो सुनते नहीं हैं लोग, क्योंकि क्लाइंट्स बहुत आते हैं हमारे पास कि हमें पीसीओडी की डाइट दे दो। हम्म. तो आप प्लीज़ ये भी बोल दो कि पीसीओडी की कोई स्पेसिफिक डाइट नहीं है,
पीसीओडी की वही डाइट है जो एक अच्छी डाइट होती है। एग्जैक्टली। सो जैसे मैंने बोला पीसीओडी की कोई दवाई नहीं होती, विच मीन्स ऐसी कोई दवाई नहीं है कि आज आप ये खा लें और 3 महीने बाद आपकी पीसीओडी बिल्कुल ठीक हो जाए। बट आई स्ट्रांगली बिलीव कि आपकी पीसीओडी कंप्लीटली रिवर्स हो सकती है, प्रोवाइडेड आप अपने लाइफस्टाइल का ध्यान रखें, विच मीन्स यू ईट अ वेरी बेसिक सिंपल homemade diet which is well balanced, which means it has got good complex carbohydrates, good proteins, good fats, vitamins, minerals, a well balanced diet जैसे कि हमारे ancestors या हमारे senior लोग हमारी family में खाया करते थे। Make sure that there is good movement in your day throughout. अगर आप ये सोचते हैं कि मैं सुबह आधा घंटा जिम जाके या मैंने पिलाटेस क्लास कर लिया मेरा हो गया, no, it doesn't work like that. You have to make sure that you are physically active throughout the day. And third is make sure never ever compromise on your sleep. That's why it's called beauty sleep. Okay, sleep is so very important to repair everything in the body which goes wrong, right from your joints, skin, health, hormones, autoimmune, everything is dependent on your sleep. And make sure at every cost you avoid stress in your life because it is never worth it. ऑसम। अच्छे से समझा दिया आपने। आई होप सब समझ के क्योंकि डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन लोग मान लेते हैं, कोचेस की बात नहीं मानते हैं। वहाँ पे वो नहीं, लोग बहुत सिंपल सा मैसेज है और मैं सबको बोलती हूँ कि आपकी हेल्थ की जिम्मेवारी आपकी है, ना वो डॉक्टर अंजलि की है, ना वो हेल्थ बडी की है। आपकी हेल्थ की अकाउंटेबिलिटी केवल आपकी होनी चाहिए। थैंक यू सो मच। एक चीज़ और ये है कि ये पीसीओडी हम्म, और थायराइड इश्यूज और हम्म, इंसुलिन रेजिस्टेंस ये ऐसा ट्रायंगल है जो एक साथ ही दिखता है। हाँ। हाउ डू यू एक्सप्लेन इट? Yeah, this is actually a very good question, and this we have seen in our clinical practice also. इंसुलिन रेजिस्टेंस एंड पीसीओएस तो बाय एंड लार्ज कोएग्जिस्ट करेगा। जैसे मैंने आपको बताया कि पीसीओडी का बेसिक रीजन ही इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है, स्पेशली इन ओबीस पीसीओएस। व्हाई डू थायराइड एंड पीसीओडी कोएग्जिस्ट? नाउ इफ यू अंडरस्टैंड कि जो दोनों का फंक्शन है, हमारे पीरियड्स का, हमारे थायराइड का, दे बोथ आर कंट्रोल्ड बाय आवर हार्मोन्स फ्रॉम द ब्रेन। हमारे ब्रेन में एक मास्टर ग्लैंड होती है जिसको हम हाइपोथैलेमस बोलते हैं। वहां से सर्टेन हार्मोन्स आर रिलीज, बिग बॉस, which work on the pituitary, and from the pituitary now the hormones are released which work on the adrenals and ovary, जिसको हम HPO एक्सिस या HPA एक्सिस बोलते हैं। तो अगर किसी की यहाँ पे गड़बड़ है तो उसकी थायराइड भी गड़बड़ हो जाएगी, उसके पीसीओएस भी गड़बड़ हो जाएंगे, बिकॉज एचपीओ एक्सिस डिस्फंक्शन कैन रिलीज टू एबनॉर्मल एलएच एंड एफएसएच रेशियो। एंड ऑल्सो ऐसा कहा गया है कि जिनको इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है या पीसीओडी होता है, उनकी जो बॉडी में एक T4 से T3 कन्वर्जन होता है। ये थोड़ा सा Inactive टेक्निकल हो से- जाएगा। So T4 is inactive form of thyroid hormone, T3 is इज द एक्टिव, तो वो भी कन्वर्जन डिफेक्टिव होता है। okay. So, once again, my plea is make sure here you are relaxed, you are happy, you sleep well, and you move your body. तो अगर आपकी पीसीओडी में इम्प्रूवमेंट आएगी तो आपकी थायराइड में भी इम्प्रूवमेंट आएगी। एंड समहाउ जो जीन्स होती हैं जो कि दोनों कंडीशंस को कंट्रोल करती हैं, पीसीओडी और थायराइड, वो भी कोएग्जिस्ट करती हैं। इनफैक्ट नाउ डेज वी से थायराइड also has a autoimmune component, even BCOD has autoimmune component. So दोनों के काफ़ी कॉमन पाथवेज हैं जिनसे ये दोनों चीज़ें ओरिजिनेट होती हैं। सो अगर आपकी एक चीज़ कंट्रोल होगी तो दूसरी चीज़ नेचुरली ही ठीक हो जाएगी। So कहीं से भी शुरू करो, हाँ, वही इसको वही लाइफस्टाइल चेंजेस जो आपने बताए थे वो चेंज करेंगे। वेट थोड़ा 5-10% कम होगा। अगर आप ओवर वेट हो तो इंसुलिन रेजिस्टेंस बेटर होगी, आपने सही तरीके से वेट लॉस किया तो। और देन योर थायराइड गेट स्टार्ट्स टू गेट बेटर, योर ओवरीज आल्सो स्टार्ट्स टू गेट द राइट सिग्नल, एंड देन थिंग्स स्टार्ट टू गेट बेटर। सो अगर आप I mean if somebody is fond of reading, they can read about cortisol melatonin cycles. हमारे ब्रेन में cortisol melatonin cycles होते हैं। तो जब आप स्ट्रेस्ड होते हो या अननेसेसरी एक्सेसिव स्क्रीन एक्सपोजर होता है तो कॉर्टिसोल बढ़ जाता है और मेलेटोनिन कम हो जाता है। नाउ मेलेटोनिन इज समथिंग व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द हेल्थ ऑफ द ओवरीज। तो अगर आप सो तो नहीं, मेलाटोनिन तो
स्लीप के लिए सुना था। हाँ, लेकिन Is it related? मेलाटोनिन इज वेरी गुड फॉर द हेल्थ ऑफ द ओवरीज। वाओ! तो अगर आप सोते नहीं हैं तो आपकी ओवरीज भी बेचारी परेशान हो जाएंगी। हर सो चीज़ वंस कितनी वेल इंटरप्रेटेड, ऑयल्ड मशीनरी की तरह या इंटरकनेक्टेड है। यस, यस। सो सोना ज़रूरी है। एंड ऑफ कोर्स लाइफस्टाइल तो करना है जब, लेकिन जैसे मैंने बताया कि अगर सपोजिंग किसी की हालत काफ़ी ख़राब है, उनकी पीसीओडी बहुत ज़्यादा बुरी है, उन्हें कोई मेडिकल ट्रीटमेंट की अवेलेबल है, अगर कोई फर्टिलिटी असिस्टेंस की ज़रूरत है, या अगर किसी को बहुत ज़्यादा हेयर ग्रोथ हो गई है या बहुत ज़्यादा एक्ने हो गई, तो मेडिकल हेल्थ help is available. Somebody is bleeding, we can give a hormonal medications also. But people have to understand कि इस दवाई से आप ठीक नहीं होंगे। We can only मैनेजिंग द सिम मैनेज योर सिम्टम्स। हुँ। अगर आप ठीक होना चाहते हो तो आपको खुद पे ही काम करना पड़ेगा। देयर इज समथिंग नोन एज अ थिन पीसीओएस, लीन पीसीओएस जिसको हम बोलते हैं। इवन वेरी थिन women might have PCOS. So this happens because they have altered fat and a muscle ratio in the body. तो अगर आपको शायद ये टर्म पता है कि नहीं, there's some term called TOFI, thin outside fat जी। inside. विसरल फैट ज़्यादा होता है, मेसेंट्रिक फैट ज़्यादा होता तो है, एब्डोमिनल फैट ज़्यादा है, मसल मास कम है कम है। एंड So even thin people can develop PCOS. नो इंडिया में तो स्पेसिफिकली वुमेन एंड मेन आल्सो दे डू नॉट इंडल्ज इनटू वेट ट्रेनिंग और वो सब। So अभी बहुत से ज़रूरी है। अभी चेंजेस आ रहे हैं लोगों को देख के, सेलिब्रिटीज़ कर रहे हैं वेट ट्रेनिंग तो बट हाँ, बट हाँ, आज से 10 साल पहले लोग नहीं करते थे। आज से 20-25 साल पहले लोगों के घर के अंदर ही इतना काम होता था which probably qualified as a reasonable weight training. But today there's no work in the house. घरों में सबके पास फैंसी गैजेट्स हैं, सबके पास हेल्प्स हैं, गाड़ी है, इन ऑनलाइन शॉपिंग है। दैट्स द बिगेस्ट प्रॉब्लम आई फील कि इसी के बहाने लोग मार्केट में जाते थे, वॉक करते थे। आजकल कुछ भी नहीं है। एक और क्वेश्चन डॉक्टर इसमें ये है कि जैसे अ लॉट ऑफ वुमेन वो है पीसीओडी आर ओवरवेट, है ना? और जो भी हार्मोनल इश्यूज़ हैं, ओवरवेट भी हैं, वो एक साथ ही रहता है काफ़ी ज़्यादातर केसेज़ में। एंड देन वुमेन दे स्टार्ट टू हैव क्रैश डाइट और हाइपोकैलोरिक डाइट, मेबी नो कैलोरीज़ अराउंड 1000 और 1200 and it can be counterproductive to their regularity of periods. एब्सोल्यूट। How, as a doctor, how do you explain what would be happening physiologically for such people? सो सबसे पहली बात, वेट लॉस इज इम्पॉर्टेंट, बट अ क्रैश वेट लॉस इज नॉट वेलकम एट ऑल। कोई प्रॉब्लम जो पिछले 10 साल से चल रही है या 5 साल से चल रही है, तो कम से कम उसे 1 साल तो हम दें ठीक करने के लिए। कोई हमें गोल्ड मेडल तो जीतना नहीं है कि 3 महीने में मेरा 10 केजी वेट लॉस हो गया। सो वेट लॉस डाइट एक ऐसी होनी चाहिए जो कि सस्टेनेबल डाइट होनी चाहिए। If you see yourself following that diet day by day in next 10 years, then that's the right diet for you. अगर आपको लगता है कि नहीं ये डाइट 3 महीने के बाद मैं कैसे इसको चेंज करूंगी, that means that's not the right kind of a diet. So you need to talk to your nutritionist or a health coach कि एक ऐसी डाइट हो जो मैं आगे जिंदगी भर उसको फॉलो कर सकूं। एंड वेट लॉस के लिए मैं ये समझती हूँ कोई भी फैंसी डाइट नहीं चाहिए होती। वेट लॉस के लिए अगर आप 1400 टू 1500 कैलोरी डाइट फॉलो कर रहे हैं विद अ गुड कॉम्बिनेशन ऑफ मैक्रोज एंड माइक्रोज एंड गुड एक्सरसाइज, इट शुड yield you a gradual sustainable weight loss. Pleasing sustainable results. Absolutely. लेकिन 1000 कैलोरी की डाइट अगर लोगे या इतनी कम या आप स्मूदीज और उस तरह की डाइट लोगे तो बॉडी सेंसेस दैट देयर इज अ स्कैसिटी ऑफ कैलोरीज Absolutely. एंड since periods our body knows कि it is reproductive system, वो उसको बैक सीट पे कर देगा, But सर्वाइवल पे फोकस करेगा हमारा। there is something known as amenorrhea, absence of period. This is commonly seen in people who starve themselves, एंड जो एनोरेक्सिक लोग होते हैं, जो खाना नहीं खाते, या एथलीट्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा ओवर एक्सरसाइज करते हैं, जैसे आपने बहुत राइटली समझाया कि जो रिप्रोडक्शन होती है वो एक सर्वाइवल फंक्शन नहीं है। तो जब बॉडी को सर्वाइव करना होता है, सो एनी फंक्शन विच इज नॉट द मेन स्ट्रीम फंक्शन वो उसको बैक सीट पे कर देते हैं, जी, तो आपका पीरियड बंद हो जाएगा। रिप्रोडक्शन वही है, मेन का रिप्रोडक्शन टेस्टोस्टेरोन बंद हो जाएगा या कम हो जाएगा। बिल्कुल, बिल्कुल, आपको प्रेगनेंसी होने में दिक्कत होगी, आपकी फर्टिलिटी खराब हो जाएगी। सो इफ यू वांट गुड फर्टिलिटी, गुड पीरियड्स, यू नीड टू ईट वेल, यू नीड टू ईट गुड क्वालिटी फूड, एंड गुड क्वालिटी फूड डज नॉट मीन आउटसाइड फूड।
केवल सिंपल घर का खाना, वेल बैलेंस्ड डाइट इज गुड इनफ। तो डॉक्टर, हमने काफ़ी हार्मोनल इश्यूज की बात की. नेक्स्ट बायोलॉजिकल फेज फॉर women इज प्रेगनेंसी, right, or fertility. So what is the right age to plan a baby for a woman? So there is nothing called as a right age. Right age तब होनी चाहिए when you are ready for a baby. Okay. Not because your mother or mother-in-law, your society is telling you to have a baby. That's not the right age. जब आप ready हैं physically, mentally, emotionally and financially, career-wise to have a baby, that's the right age. But at the same time, हमें अपनी body की biological limitations को भी समझना बहुत ज़रूरी है. So the way our body is designed, our body was designed to get pregnant in early 20s. After that, there is a fall in ovarian reserve. The number of eggs in the ovary, they start to come down. तो ये It's facts. eggs का क्या चक्कर है? Women they have limited eggs, men have unlimited. मतलब भगवान ने ऐसा क्यों किया? Bias क्यों गया? I mean, we have to fight with God. This is unfair. So, unfortunately, a woman is born with fixed number of eggs in her ovary. मतलब उसकी lifetime supply of eggs उसके birth पे ही decide हो So जाती that's है. around, if I remember, 30-40 lakhs eggs when. Millions of eggs when she's born. But as she's growing, these numbers they deteriorate. So much so कि puberty तक आते आते ये खाली eggs 3 से 4 लाख रह जाते हैं बस. एंड उसके बाद भी बहुत ही ड्रास्टिक फॉल होता है. जैसे अभी हम लोग ने डिस्कस किया था, हर महीने देयर इज एक्चुअली वेस्टेज ऑफ एग्स. 7-8 एग्स में से खाली एक ही एग फाइनली डेवलप होता है. सो So by the time she reaches 35, how many are left? so by the time 35 she probably might just have 70-80,000, maybe I think 30-40,000 eggs only in her ovary, and by 45 maybe just 1,000 eggs. Okay. या सो आजकल हम एग फ्रीजिंग की भी बहुत बात करते हैं. सो एग फ्रीजिंग इज अ टेक्निक बाय विच यू कैन फ्रीज योर एग्स. एंड वो एग फ्रीजिंग जो है अर्ली 20s में भी हो सकती है. तो अर्लियर इट इज़ डन द बेटर इट इज़, बिकॉज हमें एक बेटर नंबर, एक बेटर क्वालिटी ऑफ एग्स जो है वो So reliable चीज़ है ये egg freeze. एब्सोल्युटली बहुत ही कॉमनली डन प्रोसीजर है. एंड तो अगर आप अर्ली 20s में हैं एंड अगर आपको लगता है कि मैं 30 या 35 तक अपनी प्रेगनेंसी नहीं प्लान करना चाहती हूँ, इट्स एब्सोल्युटली फेयर, बिल्कुल सही है. बट आपको अपने लिए एक बैकअप रखना चाहिए. एंड बैकअप खाली एग फ्रीजिंग ही नहीं होना चाहिए. इज कीपिंग योर सेल्फ हेल्दी. कि आप अपने वेट का ध्यान रखें, अपने बीपी, अपने शुगर, अपनी थायराइड, सब चीज़ का ध्यान रखें. Pregnancy sustain भी तो करनी है, not just ताकि we want to whenever you get pregnant, even if with your frozen eggs, at least you should be in the best of the health so that you can conceive, Sure. जी. easily. Hmm. So once they conceive, Hmm. what are the top few tips you have for pregnant women? सो पहली बात तो ये है कि आपकी प्रेगनेंसी जो है, इट शुड बी ऑलवेज बाय चॉइस, नेवर बाय चांस. दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैसेज आई लव टू टॉक इवन ऑन मैत्री. प्रेगनेंसी शुड ऑलवेज बी बाय चॉइस, नेवर बाय चांस. मतलब जब आप चाहें Hmm. तब आपकी प्रेगनेंसी होनी चाहिए. सो मेक श्योर अगर आप रेडी नहीं है तो यूज़ अ प्रॉपर कॉन्ट्रासेप्शन. मेक श्योर जब आप चाहते हैं कि मैं प्रेग्नेंट होना चाहती हूँ, विजिट अ डॉक्टर एटलीस्ट 3 मंथ्स बिफोर यू प्लान, ताकि डॉक्टर आपको फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन दे सके, आपके टेस्ट बता सके, Hmm. आपको एक जनरल हेल्थ एडवाइस दे सके. इफ़ यू आर टेकिंग अल्कोहल और स्मोकिंग, इट्स अ गुड आइडिया टू स्टॉप दैट सो दैट यू आर इन द बेस्ट ऑफ द हेल्थ व्हेन यू एक्चुअली बिकम प्रेग्नेंट. So it should be planned, not random. हाँ, रैंडम हो जाए वो दूसरी बात है, हम लोग हैंडल कर लेंगे, दैट्स नॉट एन इश्यू. बट प्रेगनेंसी इज़ अ वेरी सेक्रेड Absolutely. इवेंट. हाँ जी. अगर हम किसी बच्चे को या किसी लाइफ को अपनी ज़िंदगी में लेके आ रहे हैं, इट्स फेयर It दैट वी मस्ट should. प्लान एवरीथिंग. Yeah. नॉट एवर फील गिल्टी, ओह मैं प्रेग्नेंट कैसे हो गई, क्यों हो गई, कीप फाइटिंग विद योर पार्टनर, दिस वाज़ नॉट डन. बिकॉज़ व्हेन दोज़ थॉट्स कम, यू सेंड दोज़ थॉट्स टू द बेबी. सो इट्स Hmm. वेरी फेयर. Hmm. अच्छा, एक और चीज़ इसमें, ये कपल्स जो है 3 मंथ्स तक शेयर क्यों नहीं करते गुड न्यूज़? इज़ इट सम ट्रेडिशन थिंग हियर या कोई साइंस है इसके पीछे? नहीं, कोई साइंस नहीं है. आपका जैसे प्रेगनेंसी टेस्ट पॉज़िटिव आता है, आप बिल्कुल जिसको भी बताना चाहें, वो आप बता सकते हैं. प्रोबेबली इन ओल्डन टाइम्स पीपल यूज्ड टू थिंक कि अगर किसी का अबॉर्शन हो जाएगा या कुछ हो जाएगा, हाउ वुड दे मैनेज? बट आई थिंक पीपल टुडे आर वेरी
mature and should be mature. It's a good news which does not involve just two people, but it involves two families. So I think बिल्कुल बताना चाहिए. हमारी तरफ से medically उसमें कोई नुकसान नहीं है. ओके, ठीक है। और सी सेक्शन ये भी काफ़ी हॉट टॉपिक है। सम वुमेन दे Hmm. ऑप्ट फॉर सी सेक्शन, Hmm. सम ट्राई देयर बेस्ट टू हैव नॉर्मल डिलीवरी। Hmm. व्हाट इज़ योर टेक ऑन दैट? So unfortunately, these days the incidence of C-section and operative deliveries is rising very, very high. अब इसके बहुत ही multiple reasons हैं. Number one is a sedentary lifestyle in women. Okay. Very, very big reason. So for a delivery, the baby has to enter the pelvis and then come out. Baby doesn't pop out like this. It has to first enter the pelvis and then come out, right? So I am a postgraduate teacher also. One of my student did a study, and उस study का title था to study the fetal head engagement patterns in priming gravidas. Priming gravidas को क्या होते हैं? जिनका first baby होता है. In a city of Gurgaon. This was the study title, thesis title. And उस thesis में हमने 500 women को enroll किया. On 500 women, I'm talking of this study being done in Gurgaon. जी। 95% of the women had a free floating head till 40 weeks. यानी कि 40 हफ्ते जब आपकी डिलीवरी डेट आ गई तो भी आपका हेड यहीं पे टंगा हुआ है. इट हैज नॉट गॉन इनसाइड. हमारी किताब कहती है 37 वीक्स पे बेबी का हेड अंदर आ जाना चाहिए सो दैट इट इज एबल टू कम आउट इजीली. अब यहाँ पे हमारी गुड़गांव जैसी सिटी में इन प्राइमरी ग्रेविडास 95% ऑफ द वुमेन हैव अ हेड हेयर एट 40 वीक्स. हाउ वुड द पुअर डॉक्टर डिलीवर दिस वुमन? एंड में लोग बोलते हैं डॉक्टर ने हमारा सिजेरियन कर लेकिन दिया. poor public आपने क्या किया? पुअर पब्लिक तो ये सोचती है कि हॉस्पिटल्स आर पुशिंग देम टुवर्ड्स So, सी सेक्शन। मैं तो आपको ये एक रियल स्टडी बता रही हूँ. दिस इज अ स्टडी विच इज डन बाय माय DNB स्टूडेंट. This is a real study. And unfortunately, in today's world, people associate pregnancy as a disease. कि ये नहीं करना है, ये नहीं करना है, ऐसे नहीं चलना है, वैसे नहीं चलना है, उठना नहीं है. How does a poor woman have a baby? जो आपके घर में मेड आती है वो तो झाड़ू पोछा लगाती है, सब 10 घर में जाके काम करती है. दैट इज वाई उसकी आसान डिलीवरी हो जाती है. सो दैट्स नंबर वन. लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी. देन ऑफ कोर्स बैड डाइट्स. मदर भी मोटी हो गई, बेबी भी मोटा हो गया, तो जो अवेलेबल स्पेस है जिसके अंदर से बच्चे को निकलना है वो भी कम हो गया. देन दीज डेज वुमेन आर हैविंग प्रेगनेंसीज लिटिल लेटर. लोग 35-40 में आ रहे हैं, तब तक आपको टाइप 2 डायबिटीज भी हो गई, हाइपरटेंशन भी हो गया, और भी बहुत मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस हो गई. Many women have IVF pregnancy, which are as it is very high risk pregnancy. So इन सब के लेते सिजेरियन का चांस बढ़ जाता है. Also these days there is a very unfortunate trend. People don't want any kind of discomfort. Pain तो बहुत ही दूर की बात है. Discomfort. लोग लेबर रूम में पहले आते हैं, मतलब बाद में आते हैं, पहले मुझे ये बोलते हैं कि मैम मुझे दर्द बिल्कुल नहीं होना चाहिए. I understand as a doctor we will do our level best. हम एपिड्यूरल देंगे आपकी बहुत सारी और ट्रीटमेंट्स होती हैं, वाटर बर्थिंग होता है, बहुत कुछ होता है, वो करेंगे. लेकिन वी हैव टू अंडरस्टैंड भाई, एक 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 जीव आपकी बॉडी से बाहर निकल रहा है, कुछ तो पता लगेगा. सो देयर इज नो पेशेंस, देयर इज लाइक एब्सोल्युटली नो I would say, willingness to endure any kind of discomfort. And इन सबको चलते cesarean rates बढ़ रही हैं, which is disturbing us also as doctor. We spend, हम 24 घंटे लगे रहते हैं एक पेशेंट के साथ. उसके बाद उसका सिजेरियन होता है. वी ऑल्सो फील बैड कि 24 घंटे उसके साथ हमने लगाया, उसके बाद भी हमें उसका सिजेरियन करना पड़ा. So it's very unfortunate, but together as a society, this problem needs to be handled. Wherein people, their partners, their family members, every person has to remind a woman कि भाई आप प्रेग्नेंट हो, आपको कोई बीमारी नहीं हो गई है. ठीक है। सो सी सेक्शन और नॉर्मल डिलीवरी, लेट द डॉक्टर डिसाइड. Let the यू doctor डू योर best. होमवर्क जो आपको प्रेगनेंसी में करना चाहिए, बिल्कुल सो दैट व्हाटएवर यू आर ट्राइंग, अगर आपने नॉर्मल डिलीवरी ट्राई कर रहे हो तो वो हो सके. बिल्कुल बिल्कुल. नेक्स्ट फेज है डॉक्टर पोस्टपार्टम, हम्म. और मामा फेज बोल सकते हैं इसको. हम्म. Women want to get back to their pre-pregnancy shape and weight ASAP. Hmm. What is your message to them? Very good.
Very good. Just because you've had your baby doesn't mean that you have to be bloated and, uh, you should be back to your shape as soon as you feel. And it's very much important because it brings your physical strength back. आपका mood अच्छा हो जाता है, आपका confidence अच्छा हो जाता है. So make sure that once again you eat healthy, you eat wholesome. In fact, a pregnant woman has to eat almost 1.5 times more than when she was pregnant. तो आपको अच्छा खाना खाना है क्योंकि आप ब्रेस्ट फीडिंग कर रहे हैं. ब्रेस्ट फीडिंग इज एक्चुअली वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव वेज टू लूज वेट. A breastfeeding mother can lose 120 kg per day from the body, which means अगर आपका 3 kg का बच्चा है, the baby extracts 360 calories from your body every day. When that baby is 6 kgs, the baby is extracting 720 calories from your body without you going to gym and doing anything. Oh, interesting. So breastfeed the baby, exercise well, eat a normal diet, sleep whenever you can, and in all probability, within next 3 to 5 months, you should be back to what you were earlier. हम्म एक और कंडीशन जो पोस्टपार्टम फेज में है डॉक्टर, जो लाइक 60% ऑफ द वुमेन हैव डायस्टिसिस रेक्टी, Hmm. है ना? और आई एम श्योर आपके पास भी पेशेंट्स आते होंगे कि मैम ये क्या हो गया, इसको कैसे करें? व्हाट इज़ योर सजेशन टू दोज़ पीपल? So, in fact, ज़्यादातर लोगों को डायस्टिसिस रेक्टी पता नहीं है. Most of the people who come to us कि आज 5 महीने हो गए डिलीवरी को, अभी भी बिल्कुल पॉट बेली है कि ये क्या हुआ मैम, मेरा पेट क्यों नहीं अंदर हुआ. जी. It's when you examine the patient then you come to know ये तो diastasis है. Unfortunately, not many times in smaller places, not even gynecologists do not pay much attention to that. So अगर आपको लगता है आपके बेस्ट ऑफ एफर्ट्स से आपका पेट अंदर नहीं जा रहा, आपको लगता है आपका कोर स्ट्रांग नहीं है, आपको बैक में दर्द हो रहा है, आपके नी में पेन हो रहा है, probably the problem lies here. So what is diastasis recti is हमारे abdomen में there are two vertical chain of muscles जिसको हम rectus muscle बोलते हैं. Normally they are in close apposition like this. But during pregnancy, during 9 months, they start to separate like this to accommodate the growing baby. But by about 6 weeks postpartum, uterus तो बेचारा अंदर चला गया. लेकिन अगर वो अभी भी ऐसे ही हैं, it's sort of a hernia only. Hernia is just a space, ओके. right? It's like a space, a permanent space which has been created. It's because of weakness of a connective tissue layer which is known as linea alba. वो permanently weak हो जाती है, मसल वापस ऐसे नहीं आ पाती. So I have seen लोग सीधा planks लगाते हैं, crunches लगाते हैं, which is actually not good. सीरियस. This can actually make the situation worse. This actually needs a proper physio treatment, proper activation of the core. आप लोग उस चीज़ में माहिर हो. So, I mean, you are the best people to do this. So, अगर किसी को इस तरह की कोई चीज़ है, make sure कि आप बिल्कुल right person को इस चीज़ के लिए contact करें. And in most of the times, with due course of time, with good, persistence, you can reverse this. And very, very, very extreme cases, you might need a surgical help. सो एक और जो पोस्टपार्टम कंडीशन है, और हमारे बहुत क्लाइंट्स ये जिक्र करते हैं इस बात का, इज़ यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस. मतलब यूरिनरी लीकेज जो है और पेल्विक फ्लोर इश्यूज, तो वो क्या प्रेगनेंसी से कैसे रिलेटेड हैं वो? बिल्कुल रिलेटेड हैं. सो लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड कि यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस का क्या मतलब है. इनकॉन्टिनेंस मतलब यू लूज कंट्रोल ओवर द फ्लो ऑफ द यूरिन. हम फॉर ऑल द विमेन देयर इज अ पेल्विक फ्लोर. एक ऐसे करके एक हैमक होता है, राइट? दिस हैमक मतलब एक झूला. जी. ठीक है. दिस हैमक इज मेड अप ऑफ मसल, कनेक्टिव टिश्यू, फेशिया. इसके अंदर 3 ओपनिंग्स होती है. आगे एक होती है जो यूरिन की ओपनिंग होती है, फिर बीच में वजाइना की ओपनिंग होती है, फिर नीचे रेक्टम की ओपनिंग हाँ होती जी. है. नाउ बिकॉज ऑफ द sheer weight ऑफ द यूट्रस, वहाँ पे जो मसल फाइबर्स होती हैं वो सेपरेट हो जाती हैं. तो जब वो सेपरेट हो जाती हैं, देयर कंट्रोल ओवर दोज ओपनिंग्स इज नाउ नॉट दैट ग्रेट. एंड व्हेनेवर द पर्सन कॉफ्स, वो वहाँ से यूरिन लीक हो जाता है. द सेम थिंग, द पर्सन मे इवन लूज कंट्रोल ओवर हर फीसेस, ओवर इवन पासिंग हर गैस.
दैट ऑफ कोर्स कम्स लिटिल लेटर, बट सबसे पहले लोगों को ज़्यादा यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस होता है। ऑल्सो एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, अगर किसी की डिलीवरी ज़्यादा डिफिकल्ट रही है या बिग बेबी है या फॉरसेप्स लगाना पड़ा या वैक्यूम लगाना पड़ा, नाउ देयर इज अ परमानेंट इंजरी टू द मसल फाइबर्स which are surrounding those openings. I'll give you a very simple example. आप ये सोचिए, अगर आपके पास एक क्लॉथ बैग है, हम्म उसके अंदर आपने आलू प्याज रख दिए 10 केजी, हम्म आपने उसको लटका दिया, आप अगले दिन देखिए उसको नीचे आपको लगेगा उसके क्लॉथ फाइबर्स कैसे वो सेपरेट हो गए। इमेजिन द सेम थिंग इज हैपनिंग टू दैट पेल्विक फ्लोर। अगर उसमें मान लीजिए 3 होल्स हो उस क्लॉथ बैग में, उन होल्स का क्या होगा? बेचारे वो होल्स ढीले हो जाएंगे। यहाँ पे भी वैसे हुआ कि वो होल्स ढीले होंगे। ऑन टॉप ऑफ दैट, अगर डिलीवरी के समय वहां पे इंजरी हो गई तो वो होल्स परमानेंटली ढीले होंगे। नाउ अगर सपोजिंग ज्यादा डैमेज नहीं हुआ, pelvic floor strengthening exercises can help. These are known as Kegels exercises, and these are very specific targeted exercises which are aimed at targeting only those muscles. Unfortunately, लोगों को ये पता नहीं है कि सही ढंग से कीगल्स कैसे करना है। इनफैक्ट हम लोगों ने अपने चैनल पे एक कीगल्स पे बहुत अच्छा वीडियो बनाया था विच हैज़ बीन सीन बाय मिलियंस ऑफ पीपल। लोग, जब मैं लोगों को बोलती हूँ कीगल्स करो, लोग अपना पेट टाइट कर लेते हैं। पेट टाइट नहीं करना है, पेट खींच लेंगे ऐसे। नहीं करना है। इनफैक्ट अगर आपका पेट टाइट हो रहा है एंड somebody else can make out that you're doing a kegel, that means you're not doing a kegel. हम्म So of course आप लोग इस फील्ड में बहुत काम करते हैं। जी। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पीपल। अगर आपको इस तरह की कोई चीज़ लग रही है, आप राइट टाइप ऑफ लोगों के पास जाइए, अपने गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाइए, आपको वो सिखाएंगे कि कैसे कीगल्स करना है। बहुत केसेस में अगर एक्सट्रीम आपने सब कुछ कर लिया, सब कुछ मतलब रिहैब हो गया, लेकिन उसके बाद भी ठीक नहीं हुई, देन ऑफ कोर्स वी एज सर्जन्स वी रिपेयर दैट एंड ब्रिंग इट बैक टू But their then original they position. they they should come up and share these things. It's a real issue Yeah. और वो ये ठीक हो सकता है and it is not something कि I'm a mother now ये तो normal है. नहीं, It's बिल्कुल not भी normal. नहीं, बिल्कुल भी नहीं। नो वुमेन शुड यू नो शुड बी लिविंग विद दिस इज अ वेरी डिफिकल्ट थिंग कि आप कहीं जा नहीं पा रहे, आप डांस नहीं कर पा रहे, आप कहीं हाइक पे नहीं जा पा रहे। इट्स वेरी डिफिकल्ट। डॉक्टर एक और क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट जो है वो है कि 30% ऑफ अर्बन वुमेन women have postpartum depression. आपके पास आते हैं क्लाइंट्स या आप वो शेयर करते हैं या आप जज करते हो? हाउ इज इट? सो इनफैक्ट आपने तो 30% बोला, बट माई observation and most of the statistics say that 70% of the women 70%. might suffer from some kind of symptoms. Now, in the beginning, we call it as baby blues. तो बहुत लोगों को बेबी ब्लूज होता है, ज़्यादातर लोगों को बेबी ब्लूज होता है। जब वो थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है तो हम उसको बोलते हैं पोस्टपार्टम डिप्रेशन। लेकिन अगर वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, उसको हम पोस्टपार्टम साइकोसिस बोलते हैं। तो पोस्टपार्टम बेबी ब्लूज में क्या होता है? द पर्सन मे बी कॉन्स्टेंटली टायर्ड, नॉट इंटरेस्टेड, नॉट एबल टू स्लीप, एंग्री, इरिटेबल। वो भी एक रियल चीज़ है, वो जान के नहीं कर रही है वो लेडी, बट देयर इज something which is happening which is disturbing the chemistry in the brain, the dopamine and the serotonin levels, वहाँ पे गड़बड़ हो रही है। लेकिन अगर वो बहुत ज़्यादा हो रहा है, so much so that there is sadness, there is hopelessness, there is worthlessness, there is probably not a desire to look after the baby. Sometimes even thoughts come to harm themselves or harm the baby. This is what is known as postpartum psychosis. Now, this definitely requires a doctor's treatment, some kind of psychotherapy, some kind of medication. While a postpartum psychosis is an emergency, it's one of the emergency where a person may be having delusions, hallucinations, and she is in a state where she could harm herself or the baby any point of time. Now, this requires admission to the hospital, some kind of a emergency psychiatric treatment. While baby blues बहुत लोगों को होता है, बहुत ज़्यादातर लोगों को कुछ ना कुछ टाइप ऑफ बेबी ब्लूज होता है, एंड सिंपली विद गुड सपोर्ट स्ट्रक्चर, गुड डाइट, गुड रेस्ट, यूजुअली वो ठीक हो जाता है। यूजुअली 1-2 हफ्ते में वो सेटल हो जाता तो है। डॉक्टर ये क्या ये नई चीज़ है? मतलब नहीं, आपको हुआ था क्या आपके टाइम पे? ये नई चीज़ बिल्कुल नहीं है, क्योंकि पुराने ज़माने में बोलते थे इट टेक्स अ विलेज टू रेज अ बेबी।
पूरा कुनबा चाहिए होता है बच्चे को बड़ा करने के लिए, लेकिन इन टुडेज वर्ल्ड वो कुनबा चला गया कहीं। पुअर हस्बैंड एंड पुअर वुमन, दे आर द ओनली टू पीपल। नहीं, मेड भी है लेकिन उसकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, हाँ जी। एंड उससे हर प्रकार की उम्मीद की जाती है। द प्रेशर टू बी अ परफेक्ट मॉम, द प्रेशर टू लुक नाइस, द सेल्फ इमेज इशू, द गिल्ट कि मैं अपने बच्चे के लिए ये नहीं कर पा रही, मेरा सो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये सारी प्रॉब्लम्स इसलिए हो रही हैं बिकॉज़ हम ज़्यादातर आजकल न्यूक्लियर फैमिली स्ट्रक्चर में ये प्रॉब्लम आज भी, जहाँ पे जॉइंट फैमिलीज़ हैं या छोटे शहरों में, अभी इतनी नहीं होती है। बट मॉडर्न सिटीज़ में जहाँ पर न्यूक्लियर फैमिलीज़ हैं, वहाँ पे ये बहुत ज़्यादा, और ये रियल प्रॉब्लम है। अब इसका आंसर जो है, पीपल हैव टू रियलाइज़ इट्स नॉट ईज़ी टू ब्रिंग अप अ बेबी। इट्स नॉट, एंड इट इज़ नॉट जस्ट अ वुमन्स प्रॉब्लम ओनली। आई हैव सीन लोग बोलते हैं बड़ा फैंसी पैटर्निटी लीव ले ली। उसके बाद 1 हफ्ते के बाद हस्बैंड तो चला जाता है, बेचारी जो वुमन है लगी रहती है उसके साथ, उसको घर पे भी देखना है, रात को उसको नींद नहीं आ रही, उसको ये भी पता है कि मुझे 3 महीने के बाद अपने ऑफ़िस में जाना है। हाउ डज़ शी मैनेज? She also has a pressure to excel there, because today we are living in a times में हम उससे ये तो चाहते हैं कि तुम बढ़िया करो अपने प्रोफेशन में, लेकिन आपको क्या सपोर्ट मिल रहा है घर पे उसके बारे में कोई इससे बात नहीं करता। So it's very unfortunate, but like I said, it needs the whole society to come forward and make sure that she's comfortable and she's able to do her best for the baby. एजुकेशन Education, बाय 3 and yes, we do talk about this, and I hope आप भी बात करते हो इस पे। ये बहुत बात। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम उससे कहाँ उम्मीद करेंगे जब वो खुद ही हेल्दी और हैप्पी नहीं, कि तुम आके एक्सरसाइज करो। आपके पास कैसे आएगी एक्सरसाइज करने के लिए? कैसे हम उससे कुछ भी उम्मीद कर सकते हैं व्हेन शी इज़ नॉट इन द बेस्ट स्पेस ऑफ माइंड? हुँ। सो डॉक्टर हमने बात की टीनेज, स्टार्टिंग ऑफ पीरियड्स, फिर हार्मोनल इश्यूज़, फिर प्रेगनेंसी, पोस्टपार्टम एंड द नेक्स्ट बायोलॉजिकल फेज़ इज़ पेरीमेनोपॉज़, मेनोपॉज़। सो वो वो डिटेल में जाने का तो अभी टाइम नहीं है, बट व्हाट इज़ योर मैसेज टू अ वुमन हू इज़ 45 इयर्स ओल्ड? सो आई वुड से कि पहली बात तो आप सब ये समझिए कि जो मेनोपॉज़ है, ये एक नेचुरल फेज़ ऑफ लाइफ है, उससे डरना नहीं है। इनफैक्ट मैं सबको बोलती हूँ, आई एम माई सेल्फ मेनोपॉज़ल फॉर मोर देन 20 ईयर्स नाउ। आई एम लाइक क्लोज टू 60 नाउ, एंड आई फील द बेस्ट ऑफ माई लाइफ हैज़ कम आफ्टर मेनोपॉज़। आपको मेनोपॉज़ से डरना नहीं है, आपको ये समझना है कि मेनोपॉज़ हो गया तो you just have to look after yourself, you have to take care of your diet, exercise, and be proud of yourself. ये सबसे बड़ी बात है, that you've come so far, that you have raised such a beautiful family, you've excelled in your career. कितनी बड़ी बात है. So please don't be ashamed of this self कि मैं menopause हो गया मुझे। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अगर आपको कोई सिम्टम्स लगते हैं, अगर आपको हॉट फ्लैशेस लगते हैं, आपको इरिटेबिलिटी लगती है, आपको कुछ वेजाइनल इश्यूज़ लगते हैं या यूरिनरी इश्यूज़ लगते हैं, तो आप डॉक्टर के पास जाइए। आपको डॉक्टर बहुत सारी हेल्प के बारे में बताएँगे, ट्रीटमेंट्स के बारे में बताएँगे, एक्सरसाइज़ेज़ के बारे में बताएँगे। बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है तो हम लोग एचआरटी भी देते हैं, इसको हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी बोलते हैं। ऑफ कोर्स एवरी पर्सन इज़ नॉट फिट फॉर एचआरटी, तो उसके भी स्पेसिफिक इंडिकेशंस होते हैं कि हम किस आदमी को एचआरटी भी दे सकते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपना ध्यान रखें। एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। मैं ये सबको बोलती हूँ कि इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अ वुमन एट दिस एज टू एक्सरसाइज देन अ वुमन हु वाज इन 20s, बिकॉज़ इस समय आपकी जो बोन हेल्थ है, आपकी कार्डियक हेल्थ है, एवरीथिंग इज़ डिपेंडेंट अपॉन योर मसल मास। क्योंकि टिपिक जो एस्ट्रोजन था, जो आपका हुँ, इतना बढ़िया हार्मोन था, आपके लिए बहुत कुछ कर रहा था, वो वो अब अब कम हो गया है। कम हो गया है। तो कार्डियक हेल्थ भी ज़रूरी है, ऑस्टियोपोरोसिस के भी रिस्क है, वो सब चीज़। तो बहुत ज़रूरी है कि आप एक्सरसाइज करें, स्पेशली स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करें विद रेजिस्टेंस, विद वेट्स। लोगों को लगता है नहीं इस एज पे मैं कहाँ जिम में जाऊँगी, बिल्कुल जाना है, बिल्कुल जाना है। तो इन्वेस्ट इन दिस, टॉक टू अ गुड फिजियो, डू ऑल दिस इज़ एब्सोल्युटली एसेंशियल, एंड ऑफ कोर्स आज की डेट में बहुत सारे सप्लीमेंट्स होते हैं, टॉक टू द डॉक्टर। हम लोग कैल्शियम देते हैं, मैग्नीशियम देते हैं, विटामिन डी देते हैं, विटामिन बी देते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि आपको दी जा सकती हैं। बट सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आप पहली बार डरें नहीं, डॉक्टर के पास सही टाइम पे जाएँ, सही एडवाइस लें, अपने ऊपर इन्वेस्ट करें, एंड इट कैन बी वन ऑफ द मोस्ट फ्रूटफुल एंड प्रोडक्टिव फेजेस ऑफ योर लाइफ। एब्सोल्युटली, ऑसम। सो डॉक्टर लास्ट जो सेक्शन है इस एपिसोड का, उसमें आई हैव फ्यू क्वेश्चंस फॉर यू। हाँ जी। और ये जो क्वेश्चंस हैं आपको
राइट, रॉन्ग, ट्रू, फॉल्स, येस, नो में जवाब देना है। ठीक है। और ये सवाल भी ऐसे ही हैं कि बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड, येस, नो। ओके, आई ट्राई ओके? माय यू बेस्ट। कैन ऐड वन स्मॉल फ्रेज बट स्ट्रेट फॉरवर्ड येस, नो वाले हैं। ओके। ठीक है? सो लेट्स बिगिन। फर्स्ट क्वेश्चन इज प्रेग्नेंट वुमन शुड नॉट ईट पाइनएप्पल। Untrue. Unless and until you're taking massive amounts of pineapple. Okay. Using public toilet is the main reason for UTIs in women. No, not at all. Untrue. Okay. Next question. If skin glows, then it's a girl. अगर dull है तो it's a boy. No, untrue. Okay. Birth control pills make women gain weight. Not really. सब not really आ रहा है. Not really. Epidural injection से lifelong back pain होता है. No, not at all. बैक पेन होता है अगर आपकी मसल टोन या मसल स्ट्रेंथ अच्छी नहीं है। Eating papaya can terminate pregnancy. नो, अगर इतना ही आसान होता तो लोगों को अबॉर्शन करने के लिए डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ता। Okay. Unprotected sex during periods can lead to pregnancy. समटाइम्स। Okay. Interesting. नारियल पानी पीने से बच्चा गोरा होगा और चाय पीने से काला. बिल्कुल नहीं। नो, कंप्लीटली नो। Pregnant women should not have Chinese food. अजीनोमोटो होता है इसमें. बिल्कुल खा सकते हैं, अगर आपको अच्छा लगता है तो बिल्कुल खाइए चाइनीज चाइनीज। फूड खाइए. अच्छी जगह से खाइए। प्रेगनेंसी में पोछा लगाने से नॉर्मल डिलीवरी होती है. पोछा लगाने से नहीं, बहुत सारी चीज़ें से हेल्प होती है। सो पोछा ज़रूर लगाइए अगर आपको अच्छा लगता है तो, बट एक्सरसाइज पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। Thank you, Dr. Soap. It was super insightful, super simplified, and really eye-opening. Thank you very much for inviting me, and for all those people who are watching, please do follow us at Insta handle Maitri Woman. We also have a channel on YouTube called Maitri, so please do follow. Aisha ko bhi follow kijiye. Soon you will see Aisha also all over. So thank you. Aisha is AI for. AI version of ठीक. Maitri. We'll put down all the information for the viewers so that they can follow all the things. Thank you. Thank Thank you. you very much for inviting me. आई एम श्योर बहुत कुछ सीखने को मिला होगा. एनी क्वेश्चंस कमेंट्स में पूछो, आवर टीम विल आंसर. और ये वीडियो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, एंड प्लीज़ प्लीज़ ये वीडियो अपने फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर करो. Every family member needs to be educated on women's health. Thank you so much for watching. See you in the next one.